Hello everyone, myself Mahendra Kumar and I am as a assistant professor at Bharati Institute of Engineering and Technology SECAT since August 2014, and today we are start a new topic, differential equation. Students, before we start differential equation, first we understand a function like y is equal to function is equal to f of x. Here x is called independent variable and y is called dependent variable. And now if we take differentiation of y with respect to x, then we write it as dy upon dx, or if we again differentiate it with respect to x, then it is called d2y upon dx square. If we again differentiate it with respect to x, then it is called dqy upon dx cube. That is the differentiation of y with respect to x. Now we study about differential equation. So we see the definition of a differential equation. That means an equation containing independent variable, dependent variable, and its derivative, or we can say differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. It's called differential equation. So students, differential equation is what? An equation which contains independent variable x, dependent variable y, and a differential coefficient of y with respect to x. That is called differential equation. Let me see an example. For example, d2y upon dx square plus 3dy upon dx plus 6y is equal r. This is a differential equation because it contains independent variable x, dependent variable y, and derivative of y with respect to x. So it is called a differential equation. Now another example we can take dy by dx plus py is equal to q, where p comma q are function of x or constant, where p and q are function of independent variable or constant. That is called a differential equation. It contains independent variable, dependent variable, and its derivative. So it is called a differential equation. Now we see order of a differential equation and degree of the differential equation. Now we start order of differential equation. Order of differential equation. The order of differential equation. Order of differential equation is the order of highest order derivative.
derivative of differential equation. That means suppose we have an equation dy by dx plus 3y is equal x square. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड dy by dx is the highest order derivative of y with respect to x. So मैक्सिमम जो ये अपना डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, वन टाइम. सो वी कैन से order of this differential equation is 1. We take another example like d2y upon dx square plus 3 dy by dx whole square plus 6xy is equal x square. This is a differential equation and we have to find the order of differential equation. So to find the order, first we see maximum highest order derivative. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो y है, y का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम्स. सो ऑर्डर इज 2. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. The degree of a differential equation, the degree of a differential equation is the power of highest order derivative of differential equation is the highest order derivative of differential equation is called degree of that differential equation, which is free from fractions and radicals, which is free from fractions and radicals. तो स्टूडेंट्स डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन. पहला एग्जांपल है दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx का होल क्यूब प्लस 9xy इज इक्वल x स्क्वायर. हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है. तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ दैट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री. तो ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर मींस वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपको कितना दिख रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर. सो ऑर्डर इज इक्वल टू. नाउ वी सी द डिग्री. डिग्री इज व्हाट, power of that highest order derivative. The power of this highest order derivative is equal 1. So degree of this equation is 1. This is called degree of differential equation. One more thing is students, we have told that it is free from fractions and radicals. Suppose that an equation is in the form d2y upon dx square power 3 by 2 is equal root of 1 plus d cube y upon dx cube का होल स्क्वायर. इस तरीके की आपको एक इक्वेशन दी हुई है. तो हमें इसे सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस फ्रैक्शंस और दिस रूट पार्ट इज रिमूव्ड. एंड टू रिमूव दिस फर्स्ट वी स्टार्ट square on both side.
then here is what, if we do square, then 3 by 2 multiply by 2, square means multiply by 2 in both sides, that means 3 by 2 into 2, what is d 2y upon dx square की power 3 is equal 1 plus d cube y upon dx cube का whole square. Now this is a polynomial form of this differential equation. We have removed this root part or fraction part. Now first we found order, then degree. So highest order derivative is what, 3. y का maximum कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है. तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, डिग्री इज इक्वल टू 2. तो डिग्री कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2 आ जाएगी. दैट मींस पावर ऑफ दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नॉट दिस कि यहाँ पर डिग्री 3 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है. पावर तो 3 आ रही है बट यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी ऑर्डर इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. तो इसकी पावर, इसी की जो पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी. तो ऑर्डर एंड डिग्री आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अपन लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो समझते हैं. अब हम सुनते हैं लीनियर, नॉन लीनियर ऑफ ए डिफरेंशियल. A differential equation if it can be expressed in the form of P naught dny upon dx की पावर है प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1. If a differential equation can be expressed in the form of this, then this is called a linear differential equation where p naught, p1, p2 up to pn and q are function of x or constant. Then this equation is called a linear differential equation. Then what is non-linear? नॉन लीनियर के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास में, देखो नॉन लीनियर के लिए क्या कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन है इफ इट्स हैज डिग्री मोर देन 1. इफ एन इक्वेशन है डिग्री more than 1, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो इस इक्वेशन में कि जितने भी टर्म्स हैं आपकी, जैसे y आ रहा है dy by dx, d2y upon dx square and so on up to this, each have power 1, each term have power 1. If an equation have like where any of the terms have power more than 1, then this equation is called non-linear equation. Second is if any term have more than 1, have exponent of more than 1. If any term have exponent of more than 1,
Third is if dependent variable and its derivative comes together, then it is called non-linear differential equation. अब स्टूडेंट्स अपन कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा है। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि a differential equation that can be expressed in the form of this where p0 p1 up to pn and q are function of x or constant, or we can say an equation which contain dependent variable. लीनियर इक्वेशन तरह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी कि an equation which contain dependent variable and its derivative of power 1 and does not occur together, that is called linear differential equation. ठीक है। नेक्स्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इफ एन इक्वेशन हैव डिग्री मोर देन 1, या तो उसकी इक्वेशन की डिग्री क्या हो मोर देन 1 आ जाए। सेकंड क्या हो सकता है कि इफ एनी टर्म हैव एक्सपोनेंट ऑफ मोर देन 1, यानी किसी भी एक टर्म की पावर मोर देन 1 होना, तो वो आपका क्या हो जाएगा नॉन लीनियर हो जाएगी। तीसरा इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव कम्स टुगेदर देन दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिनको अपन लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी चेक करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, dy by dx plus py is equal to where p comma q are function of x or constant। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है कि p और q तो क्या है फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या कंटेन कर रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और इट्स डेरिवेटिव है। क्या कहीं पर भी इसकी पावर मोर देन 1 जा रही है, किसी भी टर्म्स की पावर मोर देन 1 हो रही नहीं हो रही। क्या कोई टर्म y और dy by dx दोनों टुगेदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है। यानी ये जो इक्वेशन है किस टाइप की इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो आपकी इक्वेशन हो गई वो कैसी हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी चीज स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर भी 1 है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, और इसकी जो पावर आ रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है पावर है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। यानी ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, लाइक d2 by upon dx square plus 3 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल x। तो स्टूडेंट्स ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, पहले ये बताओ। ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो y आ रहा है, यहाँ पर dy by dx की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, एक्सपोनेंट क्या आ रहा है मोर देन 1 आ रहा है। यानी ये सेकंड कंडीशन की अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसमें dy by dx की पावर क्या आ गई मोर देन 1 आ गई। तो ये आपकी किस टाइप की इक्वेशन हो गई, नॉन लीनियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स लीनियरिटी का और नॉन लीनियरिटी में डिफरेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये आपकी कैसे होगी एक नॉन लीनियर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव बोथ आर टुगेदर, तो दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो आपकी कैसी होगी नॉन लीनियर फॉर्म होगी। ये आपकी किस तरीके की इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, dq by upon dx cube की पावर 3 प्लस 3 d2 by upon dx square plus 6
dy by dx plus 3y is equal q, where q is the function of x। तो स्टूडेंट्स ये किस टाइप की फॉर्म होगी आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों हो गई? यहाँ पर देखो आपने देखा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है, इसके डेरिवेटिव आ रहे हैं, बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है। दैट मीन्स ये क्या है डिग्री है, और डिग्री क्या आ रही है मोर देन 1 आ रही है। तो मोर देन 1 आने का मतलब कौन सा केस हो गया आपका फर्स्ट हो गया। ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। अभी कौन सा आ गया फर्स्ट वाला केस है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन 1, यानी इसकी डिग्री कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो हम क्या कहोगे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि y इक्वल f ऑफ x के आपका एक फंक्शन है जिसमें x क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड वी टेक डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड dy by dx dy upon dx square dqy upon dx cube, so on इस तरीके से। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट एन इक्वेशन व्हिच कंटेन independent variable, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable, that is called differential equation. And we see some examples of differential equation. Now we see, after that we see order of differential equation. Order of differential equation में means क्या होता है कि is the order of highest order derivative of that differential equation, यानी मैक्सिमम जो आपकी इक्वेशन में डेरिवेशन हुआ है y का डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है दैट इज कॉल्ड आपका ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। थर्ड वन हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। दैट मीन्स हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसके अंदर हमने देखा था कि जो मैक्सिमम जो पावर आ रही है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हाईएस्ट जो डिफरेंस मैक्सिमम कितनी बार हुआ है 3 टाइम्स हुआ है, और इसकी जो पावर आ रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो आपकी पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते थे कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। ये नॉन लीनियर किस वजह से हुआ क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है मोर देन 1, यानी कोई टर्म जो है इसकी वो मैक्सिमम 1 दे रही थी, इसलिए नॉन लीनियर था। यहाँ पर ये नॉन लीनियर क्यों है बिकॉज ऑफ डिग्री मोर देन 1। तो यहाँ पर मोर देन 1 डिग्री हो रही है, इस वजह से अपने पास में ये नॉन लीनियर आया था। तो डिग्री हमने देख लिया, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। आफ्टर दैट वी हैव सीन linear and non-linear differential equation. Linear differential equation, a equation which contain dependent variable and its derivative, or we can say differential coefficient of y with respect to x of first power and do not comes together, that is called linear differential equation. And a equation is called non-linear if it has an equation which contain degree more than 1 हो सकती है, if any term have exponent of more than 1 and if depends its dependent variable and its derivative comes together, then it is called a non-linear differential equation. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इट्स गिवन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।